Today, we are going to talk about self identity. Actually, when we talk about identity, it is all about how we are perceiving our own self. Yes, sir. And nowadays, you see that every person has got his perception about himself. Yes, sir. One is that how others see you, and the other is that how you see yourself. So, self identity is all about how you identify and define yourself. So, it is your perception of specific and selective traits, qualities, abilities, and characteristics that represent you. Because as an individual, you have got numerous physical attributes, internal characteristics, social roles, and external connections which make up your personal identity. तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान जो होता है वो खुद को कैसे परसीव करता है. उसके बेसिस पे जो उसको लगता है कि उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके सोशल रोल्स हैं, उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इवन उसकी हॉबीज़ जो है, तो उसके बेसिस पे एक परसेप्शन डेवलप होता है इंसान को अपनी ओर, और उसी को कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी. लेकिन जब हम इस सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इसका क्या रोल है और उससे क्या इफेक्ट होता है, हाउ इट casts its effect on a person. Can you think about that? And when we talk about the self identity, it varies how people perceive you and how you perceive yourself. There can be a variation. There are some people who are perceived very successful by others, but they themselves don't perceive themselves as successful. कभी कोई होता है, कोई शख्स, बाकी लोगों को उसके बारे में ये परसेप्शन होता है कि वो बोलते हैं कि ये बहुत कामयाब है, ये सक्सेसफुल है, इसने ये चीज़ अचीव किया, वो चीज़ अचीव किया, तो ये सक्सेसफुल है. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जिस शख्स के बारे में लोग ये चीज़ परसीव करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, वही शख्स खुद अपने बारे में ये परसीव करता है कि वो फेलियर है.
ट्रू और फॉल्स, Yes, sir. होता है ना ये चीज। Yes, sir. जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, अगर हम देखेंगे इवन जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड केसेस होते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो एंजाइटी के शिकार होते हैं, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो इफ वी विल टॉक अबाउट दोज पीपल, there are a number of examples where we can see visibly, we can feel that these people are very successful. They have created a huge fortune by earning a lot of money, by excelling in their professional ventures, by living a luxurious life. But at the same time, the person about whom people are thinking that they are successful, same person's perception about his own self is absolutely different. Same person thinks that I am not successful, I am a failure. And due to that perception, he is in a state of depression. He is in a state of anxiety. He is in a state of chronic psychiatric ailments, dependent on drugs to calm himself or herself. And we have ample examples in that regard. Even if you will go through the recent newspapers, you will come across a lot of news articles which can reflect or reveal this fact. You will come across a number of suicide cases where celebrities or very successful, businessmen have committed suicide. And once the conversations that they had with their psychiatrist come into surface, they reveal that they were depressed by something which may not be true, but it was their perception that made him to believe that to be true. तो ये चीज़ें जो होती हैं, यही सेल्फ आइडेंटिटी में आता है। क्योंकि एक हिसाब से जो हम बात करते हैं इसकी, ये रियल आइडेंटिटी नहीं होती है इंसान की, ये एक हिसाब से एक सीडो आइडेंटिटी होती है। सीडो मीन्स which may not be true. And why is it pseudo identity? Can you think about that? क्योंकि ये दूसरों के सामने होती हैं, उनको अच्छी तरह से पता नहीं होता है इसके बारे में असल में क्या है। किनको? मतलब जो एक साथ दूसरे की आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे कि मेरी आइडेंटिटी मेरे सामने, लोगों के सामने दूसरी है, अंदर से क्या मैं हूँ वो उनको पता नहीं है। एक किस्म अगर मैं दो लेकिन हम तो अभी सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी में हम उस आइडेंटिटी की बात करते हैं जो आपका परसेप्शन है आपके बारे में। हम आइडेंटिटी की बात नहीं करते हैं जिसमें मे बी दूसरों का परसेप्शन आएगा आपके बारे में। जैसे
हम यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं, जिसमें आपका अपना ही परसेप्शन है आपके अपने ही बारे में। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है, अक्सर औकात या बाज औकात ये सेल्फ आइडेंटिटी जो है एक सीडो आइडेंटिटी होती है। सीडो मीन्स विच इज नॉट ट्रू। व्हाई सो? Facts. You have got my question? Yes, sir. हाँ, तो क्या पूछ रहा हूं मैं? Yes, self identity जो Identity के होती बारे है। में। Yes, sir. सेल्फ आइडेंटिटी में आपका परसेप्शन आपके अपने बारे में आता है। Yes, sir. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने क्वालिटीज के बेसिस पे, अपनी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, अपने जो सोशल रोल्स हैं उनके बेसिस पे, अपनी हॉबीज के बेसिस पे आप अपने बारे में एक परसेप्शन एक क्रिएट करते हैं, और वही आपकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। और वो नेचुरली अलग हो सकती हैं उस आइडेंटिटी से, उस परसेप्शन से जो बाकी लोगों को आपके बारे में है। Yes, sir. तो उसमें एक डिफरेंस है, मतलब बाकियों का परसेप्शन आपके बारे में, जैसे अभी साकिब ने बोला कि मे बी बाकियों को पता नहीं है कि मैं अंदर से क्या हूँ, isn't it? So let us leave that aside. वो Yes, तो sir. हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने एक एक्सरसाइज की थी क्लास में, आपको मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था जोहरी विंडो का। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. उसमें आपने देखा वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, तो एक उसमें होता है वैसा स्पॉट जिसमें वो चीज पॉसिबल है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ आइडेंटिटी की, जहाँ पे आप जो खुद अपने बारे में एक परसेप्शन रखते हैं, वो मैं उसकी बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वो परसेप्शन, वो आइडेंटिटी भी अक्सर औकात या बाज औकात सीडो आइडेंटिटी होती है। सीडो मीन सही नहीं होती है, गलत होती। वो कैसे? चलो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा। एक इंसान के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। Yes, sir. Suppose if I will ask you a question and I will ask you that what is meant by rich? अमीर किसे कहते हैं?
कोई ये भी इसके बाद हाँ, रिच किसे कहते हैं? सर अमीर। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे अमीर को? इसके पास जिसके पास कम बहुत सारा वेल्थ पैसा हो। हो, कंफर्ट और हर फैसिलिटी है उसके पास हो, कंफर्टनेस। ओके, जिसके पास कंफर्ट हो, जिसके पास बैंक यस सर, बैलेंस हो, इजंट इट? यस और यस यस सर। सर। और ओके, चलो अब हम आपकी ही बात बैंक बैलेंस पे आएंगे। तो कितनी बैंक बैलेंस किसके पास होनी चाहिए अमीर बनने के लिए? डेली नीड्स जो होती है उससे बहुत ज्यादा। ओके, जितनी डेली नीड्स होती हैं उससे बहुत ज्यादा, तो अपना कुछ अंदाजा लगा। सर करोड़ में। तो डेली नीड्स लाखों में किसकी होती है सपोज? सर वो नहीं मतलब कि लाख बैंक बैलेंस हर एक के पास, मतलब जो लिखा जाए मिडिल मैन, उस मतलब मिडिल क्लास कोई होता है उसके पास भी बैंक बैलेंस हो ओके, सकता है 1 लाख। राइट, लेकिन अमीर के पास कुछ ज्यादा ही होगा, तो करोड़ में ही। क्योंकि ओके, करोड़ चलो, यूजुअली सबके पास। चलो ठीक है। तो और कंफर्ट, कंफर्ट आप बोल रहे थे साकिब, तो क्या कंफर्ट होना सर चाहिए रिच के पास, जिससे आप रिच बोलो? सर उसके पास एयर कंडीशनर्स होने चाहिए ओके, और गाड़ी बंगला सब गाड़ी कुछ, होने, सब कुछ। ओके, गाड़ी, एयर कंडीशनर, सारी बंगला, फैसिलिटीज। और क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? अब आपको मैं इसी बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि यही है एक्चुअली यहाँ पर ही परसेप्शन बनते हैं। तो बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, बहुत ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे बैंक बैलेंस करोड़ में भी है, गाड़ी भी है, एयर कंडीशनर भी है, और वही आदमी यस जिसके सर। पास ये सब कुछ है, वही अपने आप को गरीब समझता है, अमीर नहीं समझता। और आए दिन ऐसी एग्जाम्पल्स आपको मिलती रहेगी। इस वक्त जो करंट आपके न्यूज़ में सुना होगा, जो एक जर्नलिस्ट एक अरेस्ट हो गया रिसेंटली 2-3 दिन पहले। सर यस सर, अरुण गोसा। हाँ, जिस केस में अरेस्ट हो गया, वहाँ पे जिसने सुसाइड की, मतलब अबैटमेंट पे सुसाइड केस ही है वो, जिसने सुसाइड की, उसने जो अपना सुसाइड लेटर में ड्राफ्ट की है, तो एक हिसाब से उसने ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया है कि मतलब उसको सख्ती थी पैसों की उस आदमी की, मतलब जैसे वो गुर्बत में था,
क्योंकि उसके पैसे जो थे वो बहुत सारे पैसे कुछ लोगों के पास थे, और उसमें यस सर। शायद उसमें 83 करोड़ एग्जैक्टली, जहाँ तक मुझे याद है, न्यूज़ में ही देखा था मैंने, उसमें उसने लिखा था 83 करोड़ मेरे अर्नब गोस्वामी के पास थे जो उसने दिए यस नहीं, सर। isn't it? यस सर। तो ये जो है एक्चुअली बात में ये यहाँ पे इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ कि जिस आदमी ने सुसाइड किया तो उसके पास एक पार्टी के पास सपोज इतना पैसा था, इतने सारे करोड़, तो ऐसे ही उसके पास बहुत सारे कस्टमर भी होते ना, यस सर। यस सर। Yes. तो मे भी एक दो या तीन ने नहीं दिया, बाकियों ने तो दिया होगा ना। यस सर। तो जिसके पास इतना पैसा लोगों के पास होगा, अपने पास भी उसके पास बहुत सारा पैसा होता, यस सर। एटलीस्ट जैसे इरम ने बोला करोड़ तो एटलीस्ट होता, isn't it? यस यस सर। लेकिन उसकी नज़र में, उसके परसेप्शन में, उसके पास पैसों की शक्ति थी। दैट मीन्स उसके परसेप्शन में वो रिच नहीं था। जिसका बिजनेस डील्स उतनी स्ट्रांग होगी, इतने करोड़ लोगों के पास होंगे, तो उसके पास तो गाड़ियों का होना एक नहीं, कई गाड़ियां होती, एयर कंडीशनर्स तो होते, कंफर्ट तो होता ना हर कोई। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं एक्चुअली वो ये है कि ये जो परसेप्शंस इंसान बनाता है अपने बारे में वो अक्सर सही नहीं होते, क्योंकि जो, हाँ, आर वी कनेक्टेड? यस सर। ओके। Yes, sir. तो हम जो बात कर रहे थे, तो ये जो आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं लोग अपने बारे में, सेल्फ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सही है, ये एक परसेप्शन है, और ये परसेप्शन यस सर। सही भी हो सकता है और सही भी नहीं हो सकता है, और अक्सर अवकात ये सही नहीं होता। और यही क्वेश्चन दोबारा आपको अब रिबाउंड होता है कि सही क्यों नहीं होता है, ये जो हमारा अपना ही परसेप्शन है, देन व्हाई इज इट नॉट राइट? क्या हो सकता है रीजन? हमारे अंदर लालच होते हैं। हमारे अंदर लालच होता लालच होती है। लेकिन जो सवाल मेरा है वो ये है कि जो परसेप्शन हम क्रिएट करते हैं अपने बारे में वो सही
क्यों नहीं होता है? कभी सही भी हो सकता है लेकिन अक्सर अवकात वो सही नहीं होता है, तो वैसा क्यों होता है? सर वो हमने खुद डेवलप किया होता है अपने दिमाग में हाँ, कि ओके। लेकिन हमें पता नहीं होता ये ठीक है या गलत है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। कि हमारा सेल्फ परसेप्शन जो होगा, हम अपनी गलत चीजों को भी राइट वे में लेंगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही ही है। इससे लोगों को क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम नहीं सोचेंगे। ओके, जैसे सर आपने कहा कि अब इतनी गलतियां हो रही हैं कि अब उन लगता नहीं है कि ये गलत है या ठीक है, गलत ही अब ठीक लगता है। ऐसे यस परसेप्शन हमने माइंड में बनाए। राइट। सो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हम अपना परसेप्शन अपने ऊपर डेवलप करते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन आवर अवेयरनेस, isn't it? यस सर, यस यस सर। सर। लेकिन अगर हमारी अवेयरनेस जिस लेवल तक हम अवेयर हैं अपने बारे में, उतना ही हम परसीव कर सकेंगे ना। यस सर। और अगर हम अपने बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है तो हमारा परसेप्शन क्या होगा? गलत। हमारा परसेप्शन अगर गलत होगा, परसेप्शन बिकॉज गलत हो गया। आवर यस सर, परसेप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर लेवल ऑफ अवेयरनेस, यस सर, यस सर। and once our level of awareness is not well, we are not fully aware about ourselves, then definitely our perception will not be right. जैसे वो आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई थी उस शेर के बच्चे की जो गधों के यस सर। साथ उठता था, यस सर, यस सर। isn't यस it? सर, तो यस सर। उसको उसका उसको जब परसेप्शन। यस सर, अपनी अवेयरनेस ही नहीं थी तो वो परसीव क्या करता, और जिस यस सर, वो यस सर, अवेयर यस हो सर। गया तो सिचुएशन चेंज हो गई, चेंज हो गई। यस सर, isn't it? तो यस सर, यही यस सर। रीजन है एक्चुअली, यही रीजन है कि हमारी जो डेफिनेशंस हैं राइट और रॉन्ग की वो बदल जाती है, हमारी जो डेफिनेशन है रिच और पुअर की वो बदल जाती है, हमारे लेवल यस ऑफ सर। हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ, isn't it? यस सर। तो दिस इज एक्चुअली यहाँ पर ये टच करता है वापस उसी पॉइंट को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मेटाफिजिक्स। यस सर। वही वही हुए बेसिक हैं। क्वेश्चन हुए माई, isn't it? यस सर, तो यस सर। जितनी हमको अपने बारे में सही अवेयरनेस हो तो उसी हिसाब से हम अपना परसेप्शन अपने बारे में डेवलप करेंगे। यस सर। अदरवाइज तो हम वो चीज़ें, वो एट्रीब्यूट्स पे वो बेस करेंगे जो बिल्कुल गलत हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अपने रोल को जान के अपने आप को परसीव करेंगे। यस सर। मुझे लगेगा मैं एक सपोज कोई ऑफिसर हूँ और मैं उस हिसाब से अपने परसेप्शन डेवलप करूँगा। दूसरे को यस सर। लगेगा कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, वो उसके बेसिस पे अपना परसेप्शन डेवलप करेगा। तीसरे को यस सर। लगेगा कि मैं एक मिनिस्टर हूँ, वो उसके बेसिस पे अपना परसेप्शन डेवलप करेगा। यस चौथे सर। को लगेगा कि मैं ये हूँ, वो उसके बेसिस पे परसेप्शन डेवलप करेगा। लेकिन जब अवेयरनेस सही हो तो ये चीज़ें बहुत छोटी लग जाएगी और वो चीज़ पे फोकस रहेगा जिसके सामने पहले कोई फोकस ही नहीं था। फिर पहले इंसान उससे बड़ा लग जाएगा, पहले उसमें कॉमनलिटी नज़र आएगी, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो कुछ हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि ये सारे इंसान हैं और वो उनके छोटे रोल्स हैं। और जब ये अवेयरनेस होगी तो परसेप्शन डिफरेंट होगा।
फिर ह्यूमन वैल्यूज की कदर आएगी। यस सर। तो अगर उस अवेयरनेस में रहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसके माइंड में खाली वही चलेगा, उसको दूसरा शख्स कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो अलग अलग वाइसेस में का शिकार होगा। वो जिसको कहते हैं तकब्बुर, गुमराही, क्रेज में आएगा, तो उसको ह्यूमन वैल्यूज की कदर ही नहीं रहेगी। लेकिन जब वो अवेयर होगा, उसको ये चीज़ें छोटी लगेगी और उसको ह्यूमन वैल्यूज बड़ी नजर आएगी। और ये जो है रोल्स किसके पास क्या है, वो चीज़ें उतना मीनिंग नहीं रखेगी। फिर जैसे एक प्लेन जब टेक ऑफ करता है हवा में, एरोप्लेन, और जब फिर इंसान उस प्लेन में होता है, तो फिर वो जब खिड़की से उस शीशे के थ्रू नज़र देता है नीचे, तो जितना जहाज ऊपर जाता है उतना नीचे वाली चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती। जो बड़ा घर होता है जब प्लेन में होता है, ऊपर जाता है, वो बड़ा घर भी बहुत छोटा नज़र आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत छोटी नज़र आती जितना ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से जितनी लेवल ऑफ अवेयरनेस ऊपर जाती है थिंकिंग, तो उतनी ही ये जो फिक्टिशियस चीज़ें हैं उन पर फोकस कम होता है। वो चीज़ें फिर उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती है। फिर मीनिंगफुल लगते हैं वो चीज़ें जैसे वर्च्यूज़ हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन पे फोकस रहता है। और ये जो वाइसेस हैं, इन पे फोकस कम होता है। जैसे ग्रीड है, इस पे फोकस कम होता है। तो उस हिसाब से जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है। हम पहले हमें जो अब खुद को ही हमको जो अपना आप दिखता था, उसके बाद वो नहीं दिखता है। इवन किसी को जिसको काफ़ी लॉसेस हुए होते हैं बिजनेस में, फिनेंशियल लॉसेस, और पहले उसका जो सेल्फ परसेप्शन था उस बारे में वो बहुत कंसर्न था, लेकिन जितनी सेल्फ अवेयरनेस उसको होती है, तो फिर वो बिजनेस लॉसेस उसको ज़्यादा उतने बड़े लॉसेस नहीं लगते, क्योंकि अवेयरनेस से उसके परसेप्शन चेंज होते हैं और वो सीडो परसेप्शंस की ओर से एक रियल एक्चुअल परसेप्शन की ओर जाते हैं। और उसी हिसाब से वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको डेवलप करता है, क्रिएट करता है। राइट? यस सर। So before we conclude it, we will keep it open for some discussion. If you have anything, any observation, any sort of you want to discuss about this topic, you can feel free to initiate any sort of discussion.